Very good afternoon to all of you, beta. We are going to do periodic trends. Now, beta, if I draw a circle, if I draw a circle, and from the center, if I make one line, from center, if I make one line, so what do I call this part? Radius. Very good. So we call it as what? Radius. So very good. Now, similarly, beta, if I take, I'm going to draw this. Okay. Now here, what I'm doing, I'm taking one line from where, okay, suppose imagine this is an atom. This is what, beta? Acha. At the center, there is nucleus. Center, there is what? Nucleus. So from center, if I draw one line, from where I'm drawing this line, from the center of the nucleus to the outermost shell. So it will be known as radius of what, beta? Atom, na? So it is known as atomic radius. It is known as atomic radius. Okay. If there is a normal circle, if I draw a line from the center of the circle to the outermost, we call it as radius. If I draw an atom का बेटा from center, बेटा टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं समझेगा, पहले यहाँ पे दे, मैं बोलूंगा देखो. From the center of the nucleus, if I draw a line to the outermost shell, we call it as what? Atomic radius or atomic size. Okay, size of the atom we will define on the basis of what? Atomic radius. Is this clear? Radii or radius, one and the same thing. Okay, yeah. So now you will ask, so where this definition is given. So beta, I'll tell you, beta, it is given on page number 82. I want all of you to come to page number 82, and there you will see atomic radius. It is the distance between the center of the nucleus and the outermost shell. Is this clear? Now in periodic table, beta, they will ask you about the trend. Trend means what? What will happen to atomic radius down the group? And what will happen to the atomic radius across the period? So these are trends, beta. Okay, so yeah, down the group, what will happen? It will happen only to either increase or decrease. And across the period also either increase or decrease. So that we have to decide. Decide. Okay, now the very first one. Chalo beta, aa jao idhar pe. If I take first element, okay, if you see, if I take what beta, first element, okay, I mean in group 1. In what beta? Group 1. Atomic size or atomic radius. So these are the trends we are going to study. Now, I want all of you to pay attention here. Hey, down the group, what happens, beta? This was, imagine, hey, hello, this was suppose lithium, 2, 1. Here it is what? 281. Here it is what? 28. मिलोनी देखना बेटा, 2881. तो क्या हो रहा है? रिंग बढ़ रहा है कि नहीं? Yeah, up, down the group. First, you see this down the group. Down the group. What is happening? Miloni, number of shell is increasing now. So what is happening to the radius? It is increases. So down. So atomic, down the group, atomic radius increases. Down the group, atomic radius. Now, in exam, they will generally tell you about this element only. Most of the time. Most of the time, they will ask you about whom, beta. Look. Alkali metal. Now, alkali metal, you know, na beta, Lina K. RBC, फरार मत करो. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप. Periodic maggots came straight back. Okay, yeah. Okay, first class biryani I ate. Under research. और you can write फिर कल बाहर आई आंटी. ठीक है बेटा? Okay. Then बेटा we have Hina, Nina और करीना के एक्स रंगीन या जेरोक्स रंगीन, whatever. Okay? Now, हाँ, जेरोक्स रंगीन. लास्ट वाला वो नहीं, वो सपोर्ट अब नहीं है, इसमें नहीं करना है. वो नहीं है तुम लोगों को. हाँ, वो बाद में वो ग्रुप 13 का होता है, बैंगन आलू गाजर इतना. फिर ग्रुप 14 का है केमिस्ट्री सर गेट स्टनिंग पब्लिसिटी. ओके सर ये हीना वाला किधर है? मैं हीना ग्रुप 18. वो तो नोबेल का है. हाँ, तो वही तो है ना. तो और क्या दिया है मैंने? अरे मैंने वो वाला किया, वो किरण. हाँ, जो राइट किरण टू द एक्सरे ऑफ रोहन. हाँ, whatever. Look beta, whatever you like, you can do it beta. I have shared this and I have told you last class, I have shared photos of period. I told all of you to write it and come. Have you written those things?
हाँ लिखा मैंने, हाँ मार दूंगा बेटा, मैं ले गया था। ठीक है। All this I gave you beta, remember, I gave you all this mnemonic also. Look, I shared this in the group, all this thing, even the give reason also I have shared. तो हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, यू विल राइट ऑल दिस, ये सब मैंने भेजा है ग्रुप में, इसी पे सब क्वेश्चन आएगा, ये सब पूरा लास्ट क्लास में सब निमोनिक के साथ दिया था, लीना के आरबीसी इस फरार, देन ऑल गिव रीजन, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, फर्स्ट क्लास बिरयानी आए, ओके, नहीं ये सब आप लिखोगे बेटा, ओके, 3 to 12 transition, फिर inner transition lengthen and actinide, then 13 to 14, 13 to 16 post transition, then normal elements. Anyways, so now in exam beta they will ask you what will happen to the atomic size down the group, tell me. They will ask for alkali metal, they will ask for what? अल्कली मेटल। ए बताओ ना, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा ना बेटा, हाँ। तो नाउ इन एग्जाम दे विल आस्क यू व्हाट हैपेंस टू द, इन एग्जाम टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल कम अरिया डाउन द ग्रुप, ओके, they will ask increasing order as well as decreasing order, increasing order as well as, so what I have done, I have given very nicely to all of you, look here, very nicely I have given, look, yeah. Okay, if you see, I have just drawn this. I have written some element. Can you see? These are entire periodic table, whichever they generally ask. So look, lithium is smaller, sodium is bigger. Can you see down the group what happens to the atomic size? Increases. So if I ask for alkali metal, increases. First मैंने down the group ही पढ़ाया है, across period पढ़ाया क्या? Listen. First, I have taught you only one thing. Down the group increases. Down the group increases. So look, beta, if I ask for alkali metal, increasing order, look, I have given both. Look, I have given both. Increase, बताऊंगा, पढ़ाया नहीं ना पिक्चर पे. Increases and what? Decreases. तो increase वाला, increasing order पूछा तो क्या होगा? मिलोनी यहाँ पे लीना के आरबीसी. Decreasing बोला तो उसका उल्टा. This was for alkali. Alkaline में बेटा बेटा मांगे कार फुट रहा. हाँ, increasing order बोलेगे तो this way. Decreasing बोला तो उसका रिवर्स. फिर हेलोजन में क्या था, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई ए, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ना, वो टेनिसिन और वो सब बाद में पता होगा, बताओ वो अलग है, वो नहीं है वो। टीना ए और नोबल गैसेस, तुम लोग को 9th में इतना जो पूछते वो मैंने दिया है, हीना नीना करीना के जेरोक्स रंगीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज डिक्रीजिंग। लिसन बेटा, आई एम गोइंग टू शेयर दिस एंटायर PDF, but they will ask this way. I have given both. और भी हम क्या क्लियर है तेरे को बेटा, जितना पोल बता रहा हूं उस पर पहले ध्यान दे, स्कूल में बोला शराब एलिमेंट होता है, ठीक है, ओके, इतना तो बेटा 18 पेज, ठीक है बेटा, बस चुपचाप बैठो अभी। अभी अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, अक्रॉस द, नाउ बेटा टेल मी, ए मिलोनी, हाँ लेकिन क्यों वो सब पढ़ते हैं, चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ, कुछ पता नहीं तो बोल मत। अच्छा, ए न्यूक्लियस, एटम के सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बाहर ऐसा क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये दिस इज न्यूक्लियस, लिसन बेटा, दिस इज समायरा न्यूक्लियस, द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इज प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, so whatever is the charge on the nucleus, that will be due to what, protons, due to what, atomic number is number of protons, atomic number is what, number of protons. Now if I write, suppose if I write sodium, atomic number is 11, so how many proton it is having, magnesium atomic number is 12, so how many proton it will have, aluminium if I say 13, so how many proton it is having. So whatever is the, so this is, proton are always present inside the nucleus, so whatever is the charge on the nucleus, Samira, the charge on the nucleus, we call it as which charge, nuclear charge, which charge, and nuclear charge is nothing but equal to number of protons or not, tell me, Miloni, number of protons, na? So who is having more nuclear charge, sodium, magnesium or aluminium? Okay, so if nuclear, acha, nuclear charge, what does nucleus does, Uday, what does nucleus does? It pulls electron towards itself. It pulls electron towards. Okay, so now tell me, across the period, if I go what? Across the period. Okay, listen here. So what is the nuclear charge in case of sodium?
देखना 11. Magnesium, it is how much? 12. अरे atomic number is nuclear charge or not? Aluminium is how much? 30. Now, okay, अन्य बेटा, here it is what बेटा? Electron. Electron को कौन अपने तरफ खींचता है? Nucleus. So where force of attraction will be more? यहाँ पे 11 positive are pulling the electron. Here 12 positive are pulling the electron. Here 13 positive. जितना positive ज्यादा होगा उतना electron will come closer or not? Tell me. Right? And if you see in period beta, what happens? Number of shells are same only. देखना 281, 282, 283. अरे बेटा, number of orbit are same or not? So across the period, number of orbit remain same. But nuclear charge increases. Miloni, nuclear charge. Therefore, the outer electron will be pulled more closer to the nucleus. And therefore, atomic size decreases. Have you understood now? Why across the period atomic size decreases? So how will you write? Across the period, number of orbit remains same. Increases. Increases. Very good. Yeah. So now, but beta, this decrease happens till where, till noble gases. Sorry, till halogen. Till, देख बेटा, अगर मैं ऐसे जाऊंगा ना बेटा ऐसा पे, so down the group beta, can you see down the group what happens? Atomic size is what? Increasing. But across the period beta, can you see atomic size is what? देखना ये कम हो रहा है कि नहीं? Who is the smallest? But noble gas is slightly bigger. Noble gas is slightly bigger. अरे आप बोलेंगे why? Hey, noble gas में all electrons are completely filled. अनुभूति बेटा, in noble gases all electrons are what? Completely filled. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है. ए इलेक्ट्रॉन हैज विच चार्ज? नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा कि नहीं थोड़ा? और ये रिपल्शन मैक्सिमम कहां पर होगा? इन नोबल गैस. सो नोबल गैसेस हैव व्हाट? साइज स्लाइटली बिगर देन हैलोजन. क्लियर? ओके. ने क्या नहीं समझा? नोबल, अच्छा नोबल गैस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कंप्लीटली फिल्ड है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ना. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? Repulse. Electron is negatively charged. Repulsion will be there. So that is known as interelectronic repulsion. So therefore, due to interelectronic repulsion, their size is slightly bigger than halogen. So if they say in a periodic table, who is the biggest element? Alkali. In a period. And who is the smallest? Halogen. So what happens to the atomic size across the period? Look, beta. I am sharing this PDF. In this PDF, I am given everything nicely. Look. रिदम बेटा एक मिनट देख ले. ओके, लुक, व्हाट इज एटॉमिक साइज? I'll be sharing this PDF with you. It is the distance from the center of the nucleus to the, अच्छा डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. डाउन द ग्रुप number of shell increases, therefore atomic size increases. Can you see atomic size is increasing, right? Or atomic radius. Across the period what happens? Rushan, number of shell remains same. So number of protons, that is nuclear charge, increases. Therefore, electrons are pulled more closer to the nucleus. Hence, atomic size decreases. Clear? So now, if I say, beta, who is the biggest in a period? Alkali metal are always biggest. Halogen are, noble gases are always slightly bigger than their respective halogens. Why? Due to inter-electronic repulsion. Due to इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. ये मैं तुमको शेयर करने वाला हूँ. ठीक है? एनी डिफिकल्टी डील एरिया से तुषार? The pull of the electron from the nucleus is more than the repulsion. No. Here, there the repulsion is more. That is why their size will be little more, na? In cases of noble gases. Clear? अच्छा, अभी हम लोग ने इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या था? अक्रॉस डाउन द ग्रुप क्या होता था? बोलो बेटा, इंक्रीज होता. अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस. लेकिन पीरियड में ध्यान रखना पड़ेगा. क्या ध्यान रखना पड़ेगा? बोलो. नोबल गैस के लिए देख, पीरियड का मैंने अलग से दिया एटॉमिक साइज. एक जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, हु इज द स्मॉलेस्ट? लुक, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन पीरियड 2. Lithium 2. Can you see, beta? Here I have written very nicely. Neon is coming before fluorine. This you have to be careful. And if they say increasing order, then we'll start from fluorine, neon, oxygen, then the reverse order. Similarly, here in third period, beta, our noble gas is slightly bigger, na? So look, सबसे बड़ा कौन है? Sodium, magnesium, then it will go on decreasing. Can you see? Right? And chlorine is little bigger.
increasing order they say then chlorine, argon, and then this way. Right? Yeah, tell me. Any doubt? Miss said that there are questions like Arrange them in the increasing order and decreasing order. no, but as per like period में the three are same and then one is others. So first will be that and then. So this is what na beta, increasing decreasing order only. Okay? सर ये क्यों आ रहा है सर क्या ये क्यों आ रहा है? वो हाउ डू वी अरेंज हाँ तो ये एग्जाम में आएगा. पर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्यों नहीं अभी मैंने हम लोग ने सब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसमें जरूरत ही नहीं है. डाउन द ग्रुप हम लोग ने बाय हार्ट नहीं किया है. लीना के आरबीसीज, बेटा मांगे कार स्कूटर, द डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है देखना भाई मेरे. डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है कि नहीं, अक्रॉस द पीरियड कम हो रहा है कि नहीं. और ये देखिए नोबल गैस इज स्लाइटली बिगर, इट इज स्लाइटली बिगर ना, इससे देख रहा है कि नहीं. क्लियर है, ये स्लाइटली बिगर होता है बेटा. सर फर्मी में मेजर क्लियर है. हाँ बस यहाँ तक ही आपको पीरियड का फर्स्ट 3 पीरियड का ही पूछेंगे. क्लियर है. ओके अब बेटा ना मैं तुमको ना 3 नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में लेके जाता हूँ. नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज व्हाट? आयोनाइजेशन पोटेंशियल अच्छा बेटा यहाँ पर मैंने क्या बनाया है. हेलो लिसन. सर जस्ट नो इज नॉट पेन अटेंशन Sodium atomic number is 11. So it is how much beta? 281. So now if I draw this here, 11 protons are there and then first orbit, second orbit and this third orbit. How many electrons are here? 2, 8 and 1. I want to remove electron. Which electron will try to remove? The outermost. The outermost. But will I remove on its own? No. Now who is attracting? It is been attracted towards whom? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा है कि नहीं. तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो, इसको पकड़ के रखा है कि नहीं न्यूक्लियस ने. अब मुझे इसको ब्रेक करना है. अरिया अरिया आई वांट टू ब्रेक रिमूव दिस. सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देयर इज अ व्हाट? सो आई हैव टू ब्रेक इट और नॉट. टेल मी डियर. So for that I'll have to supply energy or not. Tell me. So I will supply energy to remove which electron? Outermost electron. So for this I'll supply some energy. And this energy which is required to remove which electron, Anubhuti? Outermost electron. From an isolated gaseous atom is known as ionization potential is known as ionization. I'll give everything. Wait, listen carefully. Okay, ionization. अच्छा सोडियम में से if one electron will go 281 था ना बेटा, it will lose 1 electron and it will become what? Positive ion. Right? 2,8. Clear, Samaira? Have you understood this? Okay. So what is ionization potential? It is the energy. We call it as IP also. IP, short form. Okay. Miloni, what it is? Tell me. It is the energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom. So now you'll say, sir, where is this definition given? Again, बाद में पहले एक एक करके बेटा, एक एक करके. ये देख, ionization potential. What was ionization potential? Tell me. Amount of energy required to remove the electron from the outermost shell of an isolated atom. Is this clear? Now next question. मस्त है ये बात मस्त है ना. तो बस अभी मस्त है, सब मस्ती है बेटा. अभी बेटा मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाऊंगा? यू टेल मी. आउटर वन ये नाउ टेल मी. ए अभी ये देख बेटा, यहाँ पे डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है. ओके लिसन, all of you please pay attention here. I want to remove this electron. From which atom I can remove electron easily? The smaller one or the bigger? बोलो. जहां पे इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना इजी होगा ना बेटा. सो व्हाट विल हैपन? बोल. अगर दूर होगा तो न्यूक्लियस भी बड़ा होना. लेकिन बेटा न्यूक्लियस बड़ा, न्यूक्लियस से नहीं, हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट पे फोकस करते हैं. न्यूक्लियर चार्ज कब आएगा पिक्चर में? जब तीनों ऑर्बिट क्या रहेगा? सेम. जब नंबर ऑफ शेल बढ़ता नहीं है. वो कभी होता हाँ पीरियड में. ठीक है, कहां पे होता है? पीरियड में. अच्छा नाउ फ्रॉम वेयर आई कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन इजीली? बोल रिदम. ऊपर वाले में से. यहाँ पे देखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बहुत नजदीक है. नजदीक रहेगा तो मैं न्यूक्लियस उसको जाने देगा क्या आसानी से? दूर होगा तो हाँ नहीं बस क्या. कर सकते हो ज्यादा नहीं. हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ. तो कहाँ पे कम ज्यादा लगेगा वो बता. नहीं सर अगर क्लोज है तो ज्यादा फोर्स से लात मार सकते हाँ तो ज्यादा फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई
आयनाइजेशन पोटेंशियल। नीचे क्या होगा? सर तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं। सुन, ए अनुभूति उठ रहे, देंगे 4 इसमें क्या पूछ, चुपचाप बैठ। वो लोग खाली क्या पूछेंगे? arrange them in the increasing order and decreasing order. So down the group ionization enthalpy, ionization potential decreases. Ionization potential, तो अगर मैंने बोला ए अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल में और इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर अल्कली मेटल होता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर नीचे वाले का क्या होता है? लो। ऊपर वाले का क्या होता है? हाई। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का अल्कली मेटल का कैसे आप करोगे? बोलो ना। इधर ये देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल अल्कली मेटल इंक्रीजिंग बोला तो देखना बेटा, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा कि नहीं, बोलो। अच्छा, हाँ वही तो इसे ध्यान देने का ना। हाँ वही, लिथियम इज स्मॉल ना, एंड दिस इज बिगर, सो व्हाट विल हैपन, व्हाट वी आर स्टडीइंग। हाँ, तो आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। हाँ हाँ, तो फ्रॉम वेयर आई कैन रिमूव इजिली? हाँ, फ्रॉम द बिगर ना। सो हियर आयनाइजेशन विल बी व्हाट? लो ना। हियर इट विल बी ओ, तो ध्यान देने का ऐसा समझा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला रहता तो क्लियर, राइट? हेलो, आई गिवन बोथ द ऑर्डर। एग्जाम में यही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अल्कली मेटल का भी सेम ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा। एंड सेम फॉर नोबल गैसेस, क्लियर? नाउ वी आर गोइंग इन पीरियड। इन पीरियड व्हाट हैपेंस, टेल मी। Increasing मतलब smallest to हाँ, इतना भी मैं So, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। so या ionization potential is basically uh the एनर्जी। how much easier it is to take an नो electron इजी, out. नो शट अप। कुछ भी क्या ध्यान देता है? अभी इतना पढ़ा है तो क्या कर रहा था? Like उसका उल्टा, sorry, उसका उल्टा उल्टा. उल्टा नहीं, ये जो बोल रहा है उस पे सुन। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? So outermost electron is attracted towards nucleus. So in order to remove this outermost electron, I have to supply energy. That is ionization potential. बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ध्यान से सुनो। ए सो अभी पीरियोडिक टेबल का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा ना, तो क्या करने का? ऐसा छोटा, ऊपर से नीचे ऐसा बड़ा कर देने का। ऊपर से नीचे क्या करने का? और अक्रॉस द पीरियड क्या करने का? छोटा। हल्का सा अरे सर हाँ। नोबेल गैस बड़ा हाँ वो नहीं, पहला इतना तीन ही बताया, इन जनरल पहले कर। इन जनरल सब बताया क्या मैंने? अभी मेरे को बताओ, यहां से मुझे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता था बेटा, तो यहाँ पे क्या होता था? ये न्यूक्लियस से दूर है, ये न्यूक्लियस से नजदीक आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ये बहुत तो कम है हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? हाई आयनाइजेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या होगा? लो आयनाइजेशन। अब बेटा अभी अक्रॉस द पीरियड जाएगा तो क्या हो रहा है? अक्रॉस द पीरियड अगर मैं जाऊंगा तो एटॉमिक साइज क्या होते जा रहा है, बोलो? छोटा होता जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो फ्रॉम वेयर आई कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम लेफ्ट और राइट। ये नजदीक हो गया कि नहीं न्यूक्लियस के? ये कहां पर है? दूर। तो यहाँ पे क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो यहाँ पे आईपी क्या होगा? लो। और यहाँ पे क्या होगा? हाई। अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। रुशान ध्यान दे, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो अगर मैंने तेरे को अक्रॉस द पीरियड बोला, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, arrange them in the increasing order of IP. So how will you arrange? Look, सर मेरा आईपी एड्रेस 144.6 Possibly 1%. हाँ क्या बोल मेरा IP एड्रेस है mentally retarded. Just shut your mouth. Okay? अरे रिटार्डेशन बस बेटा बता रहा, उस पर ध्यान दे, फालतू फालतू बातें कर रहा है। ये बोल पीरियड 2 में बेटा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा किसका? आयनाइजेशन पोटेंशियल का, तो क्या होगा बोल? अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। बराबर है कि नहीं? मिलोनी ध्यान दे, बहुत अच्छे से बढ़ा रहा बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्या लिख रही है कब से तू? क्या रंगोली बना रही है? अपना फोटो की बना रही है? Just look, जा रहा है रंगोली Okay. competition. बस
Just lose. Oh shit. हो गया? पे अटेंशन. डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो रुशन यहाँ पे देख, थर्ड पीरियड में भी, पीरियड में जाते हैं तो साइज कम होता है कि नहीं, बोलो बेटा? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज है, ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के ही क्वेश्चन आएंगे. हाँ, ये भेजने वाला हो बेटा. हाइड्रोजन नहीं पढ़ते हम लोग बेटा फर्स्ट, ठीक है ना? दिया है बेटा, हाइड्रोजन भी दिया, ले ले ये दे ले. क्योंकि मेटल, अल्कली मेटल में बोलता हूँ ना, तो इट इज नॉट अ मेटल. Atomic. वो सब मत देख, वो साइज है बेटा, ये साइज है, देख साइज बढ़ रहा है कि नहीं, वो तेरे को नहीं जानने का बेटा, ठीक है? ओके, नोबडी इज गोइंग टू आस्क ऑल दिस वैल्यूज. क्लियर है? फर्मी में वो ओके. Okay, sir. Even different. अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इट इज इन पिकोमीटर्स, यूनिट्स आर इन पिकोमीटर, ठीक है ना? हाँ. हो गया? हमारे टेक्स्ट बुक में तू चुपचाप बैठना, अपना काम कर. मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पिकोमीटर, बस चुपचाप बैठ. अबे देख, It's written in our physics. So bad. हो गया? बस. चल. अब यही चीज सामने रखो. अभी बेटा आई एम गोइंग टू कवर 3 डिफरेंट थिंग्स फॉर यू. सुनो बेटा, 3 डिफरेंट थिंग्स. अभी मुझे ना बेटा मेटालिक कैरेक्टर, सुनो बेटा, व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? तीनों चीज सेम है. मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर. मेटालिक कैरेक्टर, reducing character and electropositivity, what it is the tendency of an element to lose electron. Who will lose electron easily, बताओ? ये ऊपर वाला आसानी से लूज करेगा या ये नीचे वाला? अरे क्यों नहीं चल रहा है ये परेला? Just no. Just महिला. Who will lose electron? Who will lose electron easily? The above one, when electron is closer to the nucleus or when it is away? So down the group, what is happening? It is electron is moving away. So tendency to lose electron, tendency to reduce electron, tendency to electropositivity. So what will happen down the group? Electropositivity, metallic character and reducing power increases. Clear है? Down the group, electropositivity, reducing power and metallic character increases. Clear है? बेटा एक शॉर्टकट बताता, डाउन द ग्रुप जो भी बढ़ता है तो अक्रॉस द पीरियड वो क्या होगा? कम. क्लियर है? ओके, आर यू गेटिंग इट? अब बेटा मैं तुमको कुछ बताते, आ जाओ इधर. Sir, वो Shut your mouth. Shut your mouth. Pay attention here, beta. We did today this first. Ionization potential. It is amount of energy required to remove loosely bounded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. Top to bottom क्या होता है बोलो बेटा? Decreases. Across the period increases. Now today what else I taught you बोलो बेटा? एग्जाम में पूछेंगे who has the highest ionization potential? Helium. Who has the lowest? Cesium. Then beta I taught you electropositive and metallic character. It is on reducing character also. ये reducing power भी होता था. Down tendency of an atom to lose electron. Down the group क्या होता है? Increases. Across the period decreases. Is this clear to all of you? बोलो. अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अभी यहाँ पे गौर से देखो. हमने यहाँ पे क्या लिखा है? क्लोरीन. क्या लिखा है? क्लोरीन. पे अटेंशन यार. समायरा एंड मिलोनी 287. अभी मेरे को क्लोरीन के अंदर है ना बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. आई एम एडिंग इलेक्ट्रॉन. मिलोनी इफ आई ऐड इलेक्ट्रॉन टू दिस इट विल बिकम व्हाट? नेगेटिव चार्ज एक बढ़ जाएगा कि नहीं? नेगेटिव चार्ज बन गया तो क्या बन गया? आयन. क्या बन गया? आयन. नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? अनायन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 288. तो ये स्टेबल बन गया बेटा. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक. Stable electronic configuration or not? Tell me. Okay. Now, tell me, Nivan, if I wanted to remove electron. Listen, Anubhuti, if I wanted to remove electron, I wanted to supply energy. वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता था. अब मैं क्या करने वाला हूँ? इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड. अभी देख मैं पे अटेंशन हियर. आई एम एडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड. What I'm adding? Electron from outside से मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ. Where my
electron, this outer electron is closer to the nucleus. छोटे वाले में here it is closer to the nucleus और here it is closer to the nucleus. हाँ बोलो ना. छोटे वाले में यहाँ पे देख निवार, अबे ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नजदीक है या यहाँ पर, तो यहाँ पे ऊपर नजदीक है ना, तो छोटा वाला क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन मतलब जो मैं बाहर से ऐड करने वाला उसको आसानी से ले लेगा. Why not? या अच्छा, अभी बेटा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एटम तो इट बिकम स्टेबल, और स्टेबल होता है तो एनर्जी इज रिलीज. निकालने के लिए मेरे को एनर्जी सप्लाई करना पड़ता था कि नहीं. ओके, तो जब मैं बेटा तो जब मैं अंदर ऐड करता हूं तो एनर्जी इज रिलीज. उल्टा कर रहा हूं ना मैं. हु विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और उसी को कहते हैं बेटा, क्या पता है क्या, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्या कहते हैं, so electron affinity is what? It is the amount of energy released. It is the amount of energy when an isolated gaseous atom, definition नहीं समझेगा बाद में, when isolated gaseous atom accepts an electron, accepts an electron to form an ion, to form is known as electron affinity. रितम ध्यान दे, is known as electron Why do we affinity. call it isolate? बेटा मैं बताता हूँ बेटा, electron can be added only to a single atom in gaseous state. So, Okay, yeah, therefore we say isolated. ठीक है. To achieve. Now shut your mouth and pay attention here. What is electron affinity? Tell me. It is the amount of energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an anion. To form an anion. अभी आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में कहाँ है, तो यहाँ है. mostly के नीचे. Electron affinity is the amount of energy released. Yeah, it was energy required when an atom in the gaseous state accepts an electron to form a ion. To form an ion. Now you only tell me. You only tell me first. अरे बेटा यहाँ पे देख, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा था उधर. अबे बाहर, ऊपर से मैं देखिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉन में अंदर ऐड कर रहा हूं. यहाँ पे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, यहाँ पे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, दूर. तो न्यूक्लियस कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे, एटम अंदर चला जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूर है ना बेटा. तो अबव वन विल हैव व्हाट, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अबव वन विल हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और नीचे क्या होगा, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. लो, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, हाई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, यहाँ पे क्या था, लो, और यहाँ पे क्या होगा, हाई. तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, हाई. अरे भाई, एटम जितना छोटा होगा उतना ही बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आसानी से जाएगा. क्लियर है. सो डाउन द ग्रुप ionization potential as well as electron affinity both increases across the period. Both, sorry, down the group both decreases and across the period both. तो बेटा यहाँ पे जिसका हाई होगा वहां पे, जिसका हाई होगा वहां पे. क्लियर है वहां, वो सब मत देख, ये देख बेटा भाई, यही आने वाला है. अच्छा, ये मोक्षित नोबल गैस इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्या? Which group element have zero electron affinity? नोबल गैस. हाँ, ये देख बेटा, इधर आ जाओ. अभी आपको बेटा मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा. देख बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको बताया कि नहीं, बोलो हेलो. ये देख, amount of energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron. Down the group decreases, across the period increases. एग्जाम में पूछेगा, which group element have zero electron affinity? Noble gas, inert gas, rare gas, group 18. Why? Because उनका स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा. Therefore electron affinity is zero. अभी बेटा एक इसमें एक्सेप्शनल केस आता है. आप बोलोगे सर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, बोलो डिक्रीज हो रहा था कि नहीं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा था कि नहीं. तो अभी आप बोलोगे सर अगर मैं ग्रुप 17 में जाता हूं, किसमें, ग्रुप 17 में. ग्रुप 17 में क्या है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आए. ओके, तो बेटा अभी ये सबसे छोटा फ्लोरीन होता था, फिर ये बड़ा ऐसा ऐसा होता था ना. तो अभी अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, डाउन द ग्रुप क्या होता है, समायरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस ना.
तो लेकिन बेटा आप क्या सोचोगे अगर आपको मैंने बोला राइट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप ऐसा लिखोते थे बेटा, ठीक है ना बेटा? हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये दोनों में चेंज हो जाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ। इट इज मोर, क्लोरीन का एफिनिटी इज व्हाट, ये आपको याद रखना, ये आएगा ये बच्चे चुपचाप बैठ, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात है, बता रहा हूं ना, अभी पढ़ाया है, खाली बताया रहा है, ठीक है बस। हाँ तो अभी बेटा आप यहाँ पे ध्यान दोगे, वेनेवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेंगे, वेनेवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो गौर से देखो बेटा। अल्कली मेटल का पूछेंगे बेटा तो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, चुपचाप बैठना, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो उल्टा, याद आ रहा है ना? लेकिन हेलोजन में ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो मरेले अक्रॉस द पीरियड, मरेले डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? हाँ, तो कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करेगा, नजदीक वाला आसानी से करेगा या दूर वाला? दूर वाला। जा घर पे जा, ध्यान इसलिए बोला ध्यान देने का पढ़ाने तक, समझा ना? फालतू करी नहीं करने का क्लास में। तो कौन सा? हाँ, हु विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजिली? छोटा। तो फिर अभी तो ये कराया था हम लोग ने, अभी यहाँ पे क्या मैंने सिर फोड़ा था अपना, क्या कह रहा था? हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी। अरे मेरा पेन बेटा इतना देर को बता रहा हूँ, फिर तू है ना ऐसा टाइम पास करता है ना, फालतूगिरी करता है, ध्यान नहीं देता है, तब पढ़ाता तभी। तो किसका था, ऊपर वाले का हाई एफिनिटी था कि नहीं बोल, नीचे वाले का क्या था, लो था कि नहीं? अभी मरेले तेरे को ही बता रहा हूँ, तो फिर तो अभी ये समझा, अब ये समझा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। लेकिन अभी यहाँ पे हेलोजन में ध्यान देना, यहाँ जो उससे एसी से क्या बात करनी है, तो फिर बात नहीं सुनने वाला है, ऐसा ऐसा कर दिया करो। बेटा बस हो गया। हाँ या एंड दैट टू, ए हो गया। ए भाई अपने आप को ढूंढना बंद करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हेलोजन में मैंने देखा गौर से, देख ये देख, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख क्लोरीन का ज्यादा है, और डिक्रीजिंग पूछेगे। अरे बेटा मैं एक एक ये बहुत अच्छे से मैंने दिया है, छोटा छोटा चीज में आपको, छोटा छोटा डिटेल में पटाटे, समझा ना? सब आंख वाला करो ना। चुपचाप बैठ, अभी दिमाग खराब मत कर मेरा बेटा, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं समझता बच्चों को, ठीक है? मेरे को बताने दो ना बेटा प्लीज। ओके क्या पागल हो गया। भी तुम लोग को है ना, आप लोग को क्लोरीन का क्यों ज्यादा होता है वो जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है लगता है, जाने दो। तो फिर मैं बता रहा था ना, हाँ तो सुन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ना ये पूछेगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक, यार चलना भाई, क्यों नहीं चल रहा है? जसनू ने तोड़ दिया। क्या है बयान है? वाइल्ड वाइल्ड महिला है बीच में। महिला मंडल जसनू कुछ बोल रहा। पॉजिटिव ये नूर पॉजिटिव I know you play FC Mobile. Okay. अबे क्या है? That's what I said. It's I moving. only look at one now. It's a movie. Okay, wait, there is some problem with this, wait a minute. Just like सुनील He also scored. lazy. Yes. Yes. Okay, now wait. सर मेरे पास यूएसबी का हाथ है।
You can't secret zero. Yeah, one You don't need all the big cards. Yeah, that's the past video. Am I right then? Keep it. Which chapter? I don't know. Okay, you can't. Okay, now we are going to go for the next one. बेटा आ जाओ. आ गया. Yes. I did yes. So how we do it? We get friend made out. I think it's easy. Now, Now blow. अच्छा, you are not interested. Fine enough. I'll go to the next part. But those are Muslim. Sir, chlorine. Sir, chlorine का दादा क्यों है? Chlorine. Nobody wants Yes, to. great. तो बताओ ना chlorine क्यों है? Okay, I think इसी में प्रॉब्लम आ रहा है बेटा. तो मैं इसमें बताऊँ. Okay, now यहाँ पर मैं बता देता हूँ. सुनो बेटा. I have written chlorine. What it is? Fluorine, and this is what? Chlorine. This is what? Fluorine atomic number is 9. So inside fluorine there are 9 electrons. How many electrons are there? 9. Chlorine beta size is little bigger. So it is how much? 17. So there are 17 electrons. 17 electrons. ठीक है ना बेटा? If बात करोगे तो मैं ना डायरेक्ट स्किप करूंगा ये पार्ट. ठीक है? Now I want to add electron from outside. I want to add electron from. Let us say इसका एनर्जी कितना था? 100. अभी दिस इलेक्ट्रॉन वांट्स टू एंटर हियर, तो इसमें अंदर जा रहा है और इसमें भी एंटर कर रहा है बेटा. ठीक है. नाउ हियर द साइज इज वेरी स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. हियर इट इज वेरी हाई. यहां पर भी है लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है. अच्छा, इतनी छोटी जगह में 9 लोग खड़े हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बाहर से अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं इसको अंदर आने दूंगा क्या? मैं इसको बोला मत वो बोलेगा नहीं मुझे आना है. तो जैसे तैसे करके आएगी, बट उसको अंदर आने में ज्यादा काम करना पड़ेगा. तो इसको लेटर से अंदर में फ्लोरीन के अंदर आने में कितना काम करना पड़ेगा? 100 एनर्जी था, तो लेटर से उसने कितना यूज कर दिया? 90 यूज कर दिया. तो बाहर वो अभी कितना एनर्जी रिलीज करेगी? 10. कितना रिलीज करेगी? 10. अच्छा, क्लोरीन में भी आ रहा है वो. क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में भी वो लोग रिपेल कर रहे हैं, बट साइज बेटा क्या है? कंपैरेटिवली बड़ा है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंपैरेटिवली लेस, तो आउटर इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन. तो इसको अंदर जाने में काम कम करना पड़ेगा, और एनर्जी लेटर से कितना रिलीज करेगा? 30. तो किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है बोलो? क्लोरीन का. एंड दिस एनर्जी रिलीज इज व्हाट? अच्छा, मैं सिंपल बताता हूँ. आपके सामने 2 बसेस है, क्राउडेड बस और एक लेस क्राउडेड. आप किसमें आसानी से जाओगे? हाँ, तो क्लोरीन इज लेस क्राउडेड एंड फ्लोरीन इज व्हाट? मोर क्राउडेड. मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्शन. साइज बहुत बड़ा है ना उसके कंपैरिजन. This big but more Size is- small but Size is bigger, so electron density is less. But it gets- But we are doing this side, what? We are doing this side, not this side. We are doing this side. First class biryani. ठीक है? We are doing in the group. Okay. Okay. Now you will ask, you will ask, sir, इसका 17 था तो इसका तो 35, तो इसका तो ब्रोमीन का और हाँ होना चाहिए था ना, और ज्यादा होना चाहिए था. लेट मी टेल यू, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का होता है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन और ब्रोमीन में डिफरेंस कितने का है? 80. तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है. हाँ, इसके लिए ये खाली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्सप्लेन किया. रिदम बेटा इतना डिटेल में बताया मैंने. अब बेटा हम लोग है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट बेटा? सपोज देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन दीज 2 पर्सन, I never said that. एक्स एंड वाई. तो ये टग ऑफ वॉर में तो ये नॉट किसके तरफ शिफ्ट होगा? वेरी गुड. So this knot is shifting towards whom? Why? So the rope. So the tendency of an और नया ना सुन चुपचाप बैठ. हो गया. Now pay attention बेटा. Why के पास जाएगा. अच्छा, दिस प्रॉपर्टीज एंड इनबिल्ट प्रॉपर्टी. जैसे हमारे हम सबको, मैं आपको सबको यहाँ पे टग ऑफ वॉर के लिए बुलाऊंगा तो आपका सबका इनबिल्ट प्रॉपर्टी होगा कि नहीं? वैसे ही पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है ना, सबका एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Tendency of an element to pull shared pair of electron towards itself in combined state. In combined state. So the rope. Okay, in the combined state.
क्लियर? तो इसको अभी हम लोग बताता, इधर आ जा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ विल से सर वेयर दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। तो इन टेक्स्ट बुक बेटा आई विल टेल यू दे आर जस्ट मेंशन, इट इज मेंशन ऑन पेज नंबर 89. If you see what is written, it is electronegativity. It is the tendency of an atom to attract electron towards itself in a combined state or when it is combined in a compound. Clear? Yeah. अच्छा, अभी आप मेरे को बताओ, मेटल अपने पास इलेक्ट्रॉन बुलाएगा या नॉन मेटल? उधर मेटल और नॉन मेटल? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर कौन है बोलो? लेफ्ट में कौन है? मेटल। यहाँ पे कौन है? नॉन मेटल। सो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। अक्रॉस द पीरियड, across the period increases, down the group। अरे जो अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगा तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? कम ही होगा ना। और साइज वैसे भी इसका बड़ा हो जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा पाएगा ना, उसको पुल नहीं कर पाएगा। ठीक है? अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या? तू सुन। हम लोग ने बेटा अभी जो भी तीन प्रॉपर्टी पढ़ी ना बेटा, उसमें ये देख इसमें भी बेटा यही हो रहा था हमारा। क्या हो रहा था बोलो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा था इसमें भी? देख, हाई आईपी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबाउट, क्या किधर गया बेटा? ये चल नहीं रहा है लेकिन बेटा ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा अभी यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये देखो। Shut your mouth and pay attention here. Electronegativity. Look here. Pay attention. आर्या बेटा, look here. Electronegativity. Arya. Electron is the ability of an atom to attract shared pair of electron towards itself in its combined state. Down the group decreases. Across the period, who is the most electronegative? एग्जाम में पूछेंगे। फ्लोरीन। Who is the most electronegative? फ्लोरीन। एंटायर पीरियड नहीं, फ्लोरीन है। बट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेंगे तो किसका है? क्लोरीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेंगे तो कौन है? क्लोरीन। हाँ, ये नोबल गैसेस नहीं, ओवरऑल पूरा पीरियोडिक टेबल नोबल गैस में आता है क्लोरीन। हाँ, ओवरऑल पूरा पीरियोडिक टेबल का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? ओके। इलेक्ट्रॉन, अच्छा अभी बेटा फिर वापस एक्सप्लेन करो ना। अभी बेटा इधर पे आ जाओ। अभी एलोट्रोपी क्या होता है? 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट ना? डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल। हाँ, अच्छा फिर भी, अच्छा कार्बन है वेरियस फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल। एनी एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म we call it as allotropy। एग्जाम में पूछेंगे डिफाइन एलोट्रोपी, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। Ability of an element to exist in more than one form is known as allotropy। आइसोटोप नहीं, allotropy। अच्छा, आइसोटोप क्या होता था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, नाउ यू टेल मी। अभी मेरे को आप ये बताओ, ये देखो बेटा, ये इधर देख। हाँ इधर आ। बेटा मैं तेरे को जो बता रहा सुन। अब ये डाउन द ग्रुप है बेटा, ये क्या है? ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप 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 ग्रुप। अच्छा अब बस हो गया। डाउन द ग्रुप देख बेटा, यहाँ पर डाउन द ग्रुप, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सेम। एमसीक्यू में पूछेंगे डाउन द ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम डाउन द ग्रुप। बराबर है? वे सेम। बट अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? ये यहाँ जो अनुभूति इधर देख, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना हो गया? 2। यहाँ पे सो इट इंक्रीजेस बाय 1।
Across valence means outermost electron. Across the period, valence electron increases by 1. Down the group remains same. अच्छा ए So I can hydrogen. shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth. Listen first. जो बता रहा वो पार्ट ध्यान दे. ए इन सबके बाहर 1 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनका वैलेंसी कितना होगा 1. One. इसके बाहर 2 2 है तो वैलेंसी क्या होगा Two. डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. वैलेंसी रिमेन्स डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम. डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम. अच्छा ये 3 गेन करेगा ना तो इसका 3 हो जाएगा. ये कितना गेन करेगा 2. ये कितना गेन करेगा 1. और नोबल गैस का कितना होता है वैलेंसी 0. Okay. Down the group valency remains same. Across the period it increases from up to 4. Then it decreases up to 0. अभी आपको और एक चीज बताता. डाउन द ग्रुप देख बेटा ऑर्बिट क्या हो रहा है एक एक बढ़ रहा है कि नहीं. अरे देखना डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस बाय 1 बट अक्रॉस द पीरियड रिमेन सेम. Same. ठीक है. अभी बेटा ये जो कुछ भी मैंने बताया था आपको वो मैं सब एक साथ में बटाटे. इधर आ जा. क्लियर है. अभी देख बेटा यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया है. डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड. डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द. चुपचाप देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन. डाउन द ग्रुप क्या रहता था सेम. अक्रॉस द पीरियड क्या होता था बोलो इंक्रीजेस बाय. अरे नोट्स दोगे वैलेंसी हम लोग दूंगा बेटा. वैलेंसी डाउन द valency down the group remain same. Across the period it increases up to 4 and then decreases up to 0. अभी बताया था कि नहीं बोलो. ओके वो सब जान तेरे को जो है जिसपे ध्यान देना जो बता रहा उस पे. ऑर्बिट एंड शेल एक एक ऊपर से नीचे जाते तो एक एक ऑर्बिट बढ़ता था कि नहीं बोल. हाँ तो इंक्रीजेस बाय 1. ये सब आएगा फिल इन द ब्लैंक में. अक्रॉस द पीरियड रिमेन सेम. Atomic size down the group increases. Across the period decreases. ठीक है बेटा. फिर बात है ये फिर बाद में आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर. व्हाट इट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऊपर वाला या नीचे वाला. नीचे वाला ना. डाउन द ग्रुप metallic character or increases. Across the period decreases. Electronegativity down the group decreases. ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये सब आने वाला है बेटा. तो ऐसा फालतूगिरी करेगा ना मार्क्स आएगा नहीं. सर ये मुरली वाला. हाँ The chapter. We had it. We had one. Okay, ionization potential down the group decreases. Across the period, electron affinity down the group decreases. Across the period, reducing power is what बेटा tendency to lose electron. ऊपर वाला नहीं lose कर पाएगा आसान. नीचे वाला lose करेगा ना. Down the group reducing power increases. Across the period decreases. Oxidizing power is tendency to gain electron. कौन आसानी से gain करता है मेटल या नॉन मेटल. नॉन मेटल ना. तो देख ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस. यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी. अच्छा अभी आप मुझे बताइए आज हम लोग ने क्या पढ़ा था. एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है बढ़ता है. अक्रॉस द पीरियड कम होता है. तब इधर पे आ जाओ बेटा. डन डन. अच्छा ये पीरियड 2 मैंने लिखा है. क्या लिखा है पीरियड 2. अक्रॉस द पीरियड एक साइज कम हो रहा है कि नहीं देखो बोलो ना. और ये पीरियड 3 है. डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है कि नहीं देख. फिर ये कम होते जा रहा है कि नहीं बोलो देखना. अब बेटा क्या होता है ओनली इन पीरियड 2 एंड पीरियड 3. ओनली इन पीरियड 2 एंड ये इसका लिथियम का डायगोनल एलिमेंट कौन है देख मैग्नीशियम है कि नहीं. तो इन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम नजर आ रहा है कि नहीं. इन दोनों का भी साइज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर नजर आ रहा है कि नहीं. इन दोनों का भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है कि नहीं. ये इसके डायगोनली अपोजिट है कि नहीं. ये इसके डायगोनली अपोजिट है कि नहीं. अगर साइज सिमिलर होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा सिमिलर. तो इसलिए इनको क्या कहते हैं डायगोनल एलिमेंट या ब्रिज एलिमेंट. हु इज डायगोनल ऑफ लिथियम मैग्नीशियम. बेरिलियम का एल्यूमिनियम. बोरॉन का सिलिकॉन. बेटा ये यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक में भी था. मैंने लास्ट टाइम खाली एक पार्ट नहीं बताया था बिकॉज वी हैव नॉट डन एटॉमिक साइज. यहाँ तक हम लोग ने किया था नॉर्मल एलिमेंट्स तक. याद आ रहा है ना.
नॉर्मल एलिमेंट से हम लोग ने किया था। अभी देखिए बेटा क्या लिखा है। अच्छा, दिस ब्रिज एलिमेंट इज ओनली इन सेकंड पीरियड एंड विच पीरियड, थर्ड पीरियड, एन एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप। ओके। अच्छा, लिथियम का डायगोनल कौन है, मैग्नीशियम। बेरिलियम का कौन है, एल्यूमिनियम। बोरॉन का कौन है, सिलिकॉन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो। ओके अब बेटा है ना, फर्स्ट 20 एलिमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट 20 एलिमेंट मैं दो तीन चीजें आपको बताऊंगा। पहले बेटा आपको पता है क्या, ये थोड़ा याद रखना है। हम लोग पीरियड एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना हुआ नहीं ना, लेकिन बात सुन लो। ये यहाँ पे कौन होता है, मेटल, और यहाँ पे कौन होता है, नॉन मेटल। तो इसके और इसके बीच में कभी भी बॉन्ड बनेगा ना, तो कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट और ट्रांसफर ऑफ सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखना क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा, राइट ना। अच्छा, फिर इनके आपस में जो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बनता है। वो क्या होता है, कोवैलेंट। लेकिन अभी याद रखना, अगर कभी भी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बोला, ए हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा, कोवैलेंट। सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। क्लियर है? बिकॉज दो नॉन मेटल होगा तो कोवैलेंट, मेटल और नॉन मेटल होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। अब बेटा मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं बनता बेटा। अभी बेटा एक काम करो, आप मेरा टेक्स्ट बुक पुराना है, आपका भी चेक कर लो, अगर पुराना होगा तो पेज नंबर 92। बेटा तेरा टेक्स्ट बुक दे दो अनुभूति। MCQ 92 पे ये है बस। तुम्हारे में 91 पे है बेटा, तुम्हारा में 91 पे है। यू आर नॉट एट ऑल डन। अच्छा मतलब सेकंड ट्यूशन में करा। हाँ पकड़ी है सेकंड दो ट्यूशन। सेकंड ट्यूशन दैट वाज जेपी सर की क्लास। प्रिंसिपल यार मुझे क्यों डाल दिया, सॉरी एक्चुअली मुझे याद नहीं बस चल सेल्फ स्टडी वो कौन सी ब्रांच का देता है, नाम भी सेल्फ स्टडी। Go to rain. I'm very honest experience में तो ये ना the noble gas नहीं पकड़ दो ये। you said it doesn't box max not down. So question is what is meant by a group in a periodic table? I'm serious. No, what you have to do, I have shown this. Page number 91. I want you to do this first 80 this question. Name and state. अरे ये सब करो। चुपचाप करो, बोला ना। डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन, हीलियम कौन होगा, डू इट ऑन योर ओन फटाफट, पेन से कर फिर। Anybody have a pen? Pencil. What यार? Pencil. Page number. Pencil लेके आते हैं लोग। मुझे नहीं पता अरे कुछ pencil actually you need to कब से होगा? क्या होता है I want. I want just चलो आया आंसर। यस इसको आया मुझे उसका क्या है चलो बेटा अभी मैं एक एक करके आपको सब बताते आ जाऊं। सर मैं बोलूं कुछ भी हाँ अनीला दादर बोलोन है तेरा काम करना या नीला दादर ये वो सब देख रहा है। NCC boys just do raise the hand. Ashwana's gonna give the answer now. चलो बेटा अभी बस बातें नहीं, यहाँ पर देख अद्वैता बेटा पहले का आंसर क्या है बताओ। ओके, नोबल गैस डुप्लेट हीलियम,
Noble gas with 288. Argon. Argon. Very good. Boron. Yeah. A first 20 Boron, एलिमेंट periodic table में silicon. दो ही पिए हैं मेटलॉइड, बोरॉन एंड सिलिकॉन. ये बाय हार्ट करना, बोरॉन एंड सिलिकॉन. Silicon. मेटलॉइड नहीं, तुम लोग को खाली फर्स्ट 20 एलिमेंट आना चाहिए. A number of shell in period 1 1, period 2 2, period 3 3. Valency of element in group 1 1. Group whose has zero valency, group 18. 18. Alkaline earth metal, Magnesium. magnesium. Non-metallic element present in period 3 other, Phosphorus. phosphorus. Very good. ChatGPT. Sir, Non-metallic oxygen. oxygen. Alkali metal and alkali metal NaCl. sodium and NaCl, sodium chloride. Sir, why can't we speak? HCl. कोवेलेंट एंड हेलो, ये आज बताया था ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होगा, कोवेलेंट. अल्कली मेटल इन पीरियड 3 विल डिसॉल्व इन वाटर, Na, Sodium. सोडियम. ग्रुप 0 भी लिख सकते हैं गूगल क्लास. या लेकिन वो ग्रुप नंबर बोला तो ग्रुप लिखने का. पीरियड 3 हैविंग वैलेंसी 3, एल्यूमिनियम. ये ब्रिज एलिमेंट बेटा, ब्रिज एलिमेंट कौन कौन, लिथियम का कौन था, मैग्नीशियम. फिर बाद में बेरिलियम का कौन था, एल्यूमिनियम. बोरॉन का कौन था, सिलिकॉन. Sodium. सिलिकॉन क्या सोडियम छूंगा. पीरियड विच कंटेन इनर ट्रांजिशन 6 7 6 7 लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. अच्छा ये मैग्नीशियम है, इसका हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgOH2. MgOH2. Sir, the ChatGPT क्या उसको? द वैलेंसी ऑफ पीरियड 3 1. 1. क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा कि नहीं, हो गया क्या, ये बोलो. Yes. कितना मस्त था ना ये. Sir, just one more. Sir, there's मैं करता ना पहला, ये तो होंगे सबका कॉपी. tetravalent. अच्छा लगा. Carbon is not tetravalent. Last carbon is tetravalent. Yeah. I confused tetravalent. Same, I think it's three. हेलो अभी सो जा. हो गया ये, आगे बढ़ो. नाइस. अरे यार जल्दी 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 बेटा, रफट. Same, sir. अरे बहुत मुझे भी नहीं आ चुपचाप बैठो. सर 5 मिनट बाकी है प्लीज. नो 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 वेट. नो, shut your mouth. Work. I am erasing this. 1 2 3 start. यहाँ पे पीरियड नॉन मेटल इन पीरियड 2, सर बहुत क्लियर. कार्बन कार्बन. ठीक है. अभी बेटा आप लोगों के हॉट के क्वेश्चन है, हॉट्स दिख रहा है ये, मल्टीपल चॉइस. एलिमेंट विच इज यूनिवैलेंट स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग, रेड्यूसिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कौन होगा, सोडियम. A solid univalent which is a strong oxidizing, strong कौन होगा, आयोडीन. नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग बोला तो फ्लोरीन. नहीं सर हैलोजन. हाँ तो यहाँ पे हेलोजन में फ्लोरीन है ना, तो ऊपर वाला फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, फ्लोरीन. वैलेंसी इज Sir, ऑफ B. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ Both noble A gas and R are is true. R is true but R is not the correct explanation. वही B बोला. हमारे स्कूल के एमसीक्यूज में हमेशा यही होता है. It is not the relation. A is true and R is also true, but R is not the R correct is not the explanation. correct explanation. R is not correct ना. वही तो बोला. नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक. नोबल गैस किसके साथ रिएक्ट होता है, एक देगा रैप्टर. बेटा दिमाग खराब मत कर. ये देख, तुम लोग को बताया भी था ना नोबल गैसेस क्या होता है. ये देख ना, मोनोएटॉमिक है ना. अब देख, हाइड्रोजन H2 बनता है, हीलियम He2 बनेगा क्या, तो फिर समझा ना. तो R is also true, कुछ भी बोलने का नहीं. ज्यादा बोलो मत, ज्यादा बजो मत. Sir, C chlorine is more electronegative. Both A and R true, but R is not the correct explanation. Okay. अभी ये सब select the incorrect effect.
Sir, C, chlorine is more Position electronegative. isotope have to be placed in same position to the atomic number. Aluminum is the weak post. Aluminum weak है. ये है क्या? Post Sir, transition C, है. C, हाँ, C, aluminum post transition है. Chlorine is more electronegative than fluorine है. C. Fluorine is more electronegative नहीं. तो C is wrong. ठीक है ना? सर से ChatGPT Fluorine is most electronegative. Element in period 2 have 2 electron in and group 2 have 2 valence electron. True, both are true. अच्छा, अभी आपको ऐसा दिया है बेटा, ये देखो ABCD फॉर्म में मस्त इसे आंसर करना. ओके, ये डाइवैलेंट कौन है इसमें से? डाइवैलेंट कौन है? बी डाइवैलेंट होगा. सर हम पेंटाडैक्टिल बी अरे इसका वैलेंसी 2 होगा कि नहीं बोलो? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, तो कौन लूज करेगा? साइज बड़ा है ना, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज है. अनरिएक्टिव कौन होगा? वाई. ठीक है. आर एन एक्स स्टेट, आर और एक्स में से एक्स ये एक्स कौन है? ब्रोमीन. याद आ रहा है कि नहीं? फ्लोरीन ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड, तो एक्स इज लिक्विड. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आर और एक्स में चमक्का. लेस नॉन मेटालिक कौन होगा? एक्स. ठीक है, बिटवीन आर एंड एक्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन लिथियम इज हाउ मच? 2. मैग्नीशियम इज 2,1 ना. मैग्नीशियम इज 3. बी में कितना है? बी किधर है? बी इधर है ना, तो ये कितने 4th पीरियड में, तो 4. आर्गन में कितना है? 3. अरे पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट और नॉट? टेल मी. क्लियर है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम कितना होगा? 1. बी सेकेंड ग्रुप में तो 2 ना. भूल गया क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो ग्रुप नंबर 2. Nice. एक्स देखते ना, एक्स 17 में ना, तो ए इसका भी. अच्छा मैं तुमको बताऊं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढने का ट्रिक. अगर 13 के ऊपर है ना ग्रुप नंबर, तो -10. तो 7. 17 - 10 7. आर्गन में 18 - 10 8. ओ, ये सब ट्रिक्स है. विच इज मोर रिड्यूसिंग, ए और बी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए इज मोर रिड्यूसिंग बिकॉज उसका साइज बड़ा है. समायरा, उसका साइज बड़ा है. लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, विच आर नॉर्मल एलिमेंट? नॉर्मल एलिमेंट बेटा ये, हाँ तीनों नॉर्मल एलिमेंट, ये तीनों होगा बेटा. ब्रिज एलिमेंट कौन होगा? लिथियम एंड मैग्नीशियम. अल्कली मेटल कौन है? लीना. स्टेट द वैलेंसी ऑफ आर. आर कहां पर है? आर का वैलेंसी क्या होगा? -1. वाई किधर है? वाई 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 इधर है. 0. आर ए एंड वाई स्टेट विच आर मेटल. आर एंड ए आर मेटल. आर एंड ए मेटल. आर में सॉरी, ये क्या था? मैंने ए और बी देख लिया. सो सॉरी. क्या बोल रहा है? ए सो सॉरी. A is metal. Who are non-metal? R and Y. तो noble gases are non-metal. अच्छा चलना ठीक है ना, तो अच्छा ले भाई, बस नोबल गैस ले ले, बस खुश. 8 from period to lithium, carbon and fluorine. State which element shows allotropy? Carbon. Element which can exist in more than one form. Carbon. 6 foot. हाँ कार्बन ही है. Give reason why element F, R, X so similar. F, A, why similar? Because they have same valence electron. समझा क्या? अरे यार. Oh, you saved it as a PDF, sir. Oh, let's go. Same valence electron. Sorry. अभी ये सब आप लोग खुद से कर देना बेटा. रुक जा, जाए वाली.
क्या करना है क्या करना है dash arrange the element in the increasing atomic number. Mostly. Metal 2, lithium. Period having atomic number 11 to 18, third period. Most reactive halogen, fluorine. In a group number whose atomic number is 4, group 2. सवाई टू 2,2. Atomic number 4 है तो 2,2. Outermost electron is equal to group number ना. Atomic number is 4. 4 is 2,2 and there was group number. Group number is what? Number of valence electron. Okay? भूल गई? अबे मरेली ये ले ये देख ले पोजीशन. Period number is what? Number of orbit or shell. Group number is what? Number of valence electron, that is outermost electron. If my valence electron is 1, then group 1. If it is 2, then if it is 3 or more, then you have to do 10 plus. Achha, now I've given sodium. So 281, how many orbits are here? So it is period 3. Because period number is equal to number of orbit. How many valence electron is there? Therefore group 1. Calcium 20, 2882. How many orbits are here? So period 4. How many valence electron are here? So group 2. Chlorine 287. How many orbit are here? 3. So period 3. Group number is what? Valence electron. How many valence electron are here? 7. So if it is 3 or more, what you have to do? 10 plus. So 10 plus 7, 17. तो मैंने उससे पूछा एक्चुअली जो 7 है वो कैसे मिलेगा ग्रुप जो एक्चुअली 7 है क्योंकि अगर प्लस एक्चुअली 7 ऐसा है ही नहीं. चुपचाप भाई ट्रांजिशन एलिमेंट वो तुम लोग को नहीं है भाई. नहीं है. नहीं वो मैंने तेरे को बताया था ना पीरियोडिक टेबल तुम्हारा एसपीडीएफ पे हो. ओके तुम जितना टाइम पास करोगे उतना मैं और बैठा होगा आप लोगों को. मैं और समझ सकता है वो सब दूसरे लोग बात करेंगे. It's just a spider. एक मिनट अर्नव जशनूर एंड काशवी तुम्हारा वर्कशीट में किसको दूं? मैं नेक्स्ट क्लास आ जाऊंगा. अच्छा अर्नव व्हाट अबाउट यू? I don't know, Mokshit. नेक्स्ट क्लास में. Okay. नहीं ये अर्नव को कौन जानता है तुम्हारे में से? काशवी Wait, sir. बोलो. So, Anubhuti lives in my society, so she can actually give. Anubhuti lives in your society. Yeah, अच्छा, I'll give it to her. Your society Kohani is also. and my sisters as well. Yeah. Yeah. अरे यार 1, 2, 3. चलो जा सकते हैं सर. नेक्स्ट क्लास क्या है था हाँ ये नेक्स्ट क्लास में है. Your last ए भाई इसका कौन करेगा? अंतारा कौन है वो? तो अनेक तो मैं पहले दो पास देख अनेक जो She's in your society only. ये बोल के स्पीकर को क्या नाम है उसका? बनी नहीं. चल गाना यार. वो निवान के घर पर है निवान के सोसाइटी में. हाँ बोलो. So give my worksheet to Advaita. हाँ Give my worksheet to Advaita. अद्वैता. जाना तो चल घर को बोलना है भाई अभी तो इंटरव्यू क्या है